So, hello everyone. I am Advocate Anuradha. I am working as legal consultant at Lexis and Company, and it is a pleasure for me to join all of you and to teach you CRPC and IPC as of today. So, we'll be having two sessions. One we are we are already late for that, and guys are still joining. So, this session will be from 1:10 to 1:30. Another 2 minutes I'm waiting for. And the other session will start at 1:35 to 2 o'clock. That will be of IPC. So to begin with, first of all, the assignment will be shared with you on the Google Classroom. And whatever I will be teaching you today, you have to understand it very thoroughly in order to complete your assignment. Otherwise, you won't be able to solve that. Plus, if any doubt, you're having any doubt at the end of the session, you can leave it in the comment box when the lecture is uploaded on the YouTube. Also, I'll be marking your attendance. How many of you joined? And the other rules related to my class will be uh, just hold on a second. You'll get to know the other rules about my class as we shall begin with the class. So during the class, I'll be telling you everything, whatever you have to do and how you'll be submitting your assignment. So let's begin. So today we will be talking about FIR. Some of you might have already studied about FIR, while some of you might be studying it in the next year. So FIR is First Information Report. Now, First Information Report is the word which is not specifically mentioned or defined anywhere under CRPC specifically. But yes, you can find this word under us under one section. So this section, I am giving you one assignment, one single assignment. You have to find where word FIR is mentioned under CRPC. This word FIR is mentioned only once. So you'll be telling me tomorrow where this word FIR is mentioned. Now let's begin with FIR. So FIR, what is FIR? FIR is the first information that is received by any police officer. The information regarding who is this? The latest guy that have joined Pawn Raiders. Guys, this person has left the meeting. This will not be allowed at any cost. Join by your name, your real name. This will not be tolerated at all. So let me share my screen with you and we'll then be understanding the concept of FIR. So let's begin with FIR. FIR is every information, every information. It may be oral or it may be written. This information is to be if given in oral. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को ओरली प्रोवाइड की जाती है देन दैट इंफॉर्मेशन इज टू बी कन्वर्टेड इन राइटिंग. अगर आप पुलिस ऑफिसर को ओरली कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं देन दैट पुलिस ऑफिसर विल कन्वर्ट इट इनटू राइटिंग. ओके,
अब ये जो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने राइटिंग में कन्वर्ट की है, दिस इंफॉर्मेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। जिस भी पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी है वो पर्सन इस इंफॉर्मेशन को साइन करेगा, साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। Now, after this information has been converted into writing by the police officer, this will be read over to the informant. You can open your Bear Act and read the section side by side. So, this will be read over by the police officer to the informant. और ये पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेंट को पढ़ के क्यों सुनाएगा? सो दैट इट मे बी कंफर्म्ड कि जो इंफॉर्मेंट ने इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन एज इट इज पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड की है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज एफआईआर। अब ये एफआईआर कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? दिस एफआईआर इज रिकॉर्डेड इन स्टेशन डायरी। स्टेशन डायरी मेंटेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन और डेली डायरी। Fine. Now, this was 154 clause 1 we have talked about till now. This is 154 clause 2. So this copy of FIR, अभी तक जो भी FIR में लिखा गया, जो भी डायरी में रिकॉर्ड किया गया, इसकी एक कॉपी इंफॉर्मेंट को प्रोवाइड की जाएगी। This is what section 154 clause 2 talks about. Now, clause 3 talks about कि अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज कर दे कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, देन व्हाट? देन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वी हैव दिस रेमेडी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास हम एक रिटन पोस्ट में अपना ग्रीफ उनके पास रिटन पोस्ट में भेज सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इस पुलिस स्टेशन के इस पुलिस ऑफिसर ने दैट पर्सन हैज रिफ्यूज टू लॉज माय इंफॉर्मेशन। अब ये रिटन पोस्ट में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम भेज सकते हैं। अगर ये रिटन पोस्ट में भेजने के बाद उनको लगता है इफ फाइंड्स कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, देन दैट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आइदर हिमसेल्फ, या तो वो खुद या फिर किसी और पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर देंगे, अनदर पुलिस ऑफिसर। अगर अब उसने खुद भी नहीं किया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मना कर दिया, या फिर जिस किसी और अनदर पुलिस ऑफिसर को उसने अपॉइंट किया कि आप रिकॉर्ड करिए इनकी इंफॉर्मेशन, उन्होंने भी मना कर दिया, देन व्हाट? देन द नेक्स्ट रेमेडी वी हैव, इफ देयर इज फेलियर at this stage also, then what? Then the other remedy we have is to approach the magistrate directly. Magistrate under section 190 of CRPC read with section 200 of CRPC. आप ये टेबल साथ साथ बनाते हुए चल सकते हैं for your own perusal. Now, if SP also refuses, as I've already told you, then magistrate can be approached. Magistrate can be approached. In writing complaint दी जाती है magistrate को under section 190. So now, sorry, what is the object of FIR? Object of FIR is to record true events. अगर कोई इवेंट अभी हुआ है तो उस इवेंट को अगर हम अभी अभी रिकॉर्ड कर लेंगे तो उस इवेंट को हम एज इट इज रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ समय बाद उसे रिकॉर्ड करेंगे तो हम कुछ चीजें भूल भी सकते हैं। इसीलिए फॉर दिस रीजन ओनली वी रिकॉर्ड एफआईआर, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एफआईआर को रिकॉर्ड कर दिया जाना चाहिए। दो देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम लिमिट कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी है या फिर 1 महीने के अंदर देनी है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज नॉट गिवन अंडर सीआरपीसी। ऑब्जेक्ट, नाउ
Who can give this information? Victim himself? Any other anonymous person? And any other person या कोई relative? Okay? यहाँ तक कि अगर किसी ने खुद ने क्राइम किया है तो वो क्राइम करने वाला पर्सन भी जाके पुलिस को बोल सकता है, बट दैट एफआईआर शुड नॉट बी कन्फेशनल इन नेचर. अगर वो कन्फेशन के रूप में जाके पुलिस ऑफिसर के सामने बोल रहा है, देन दैट पर्टिकुलर कन्फेशन विल बी हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जहां पे हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी पर्सन पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन नहीं दे सकता. सो वेयर दिस इंफॉर्मेशन is to be recorded. This I've already covered in the daily diary. There is one case. This case is a landmark judgment related to FIR, State of UP versus Punate Ramube. Okay, what was held in this particular case? It was held that if police officer refuses, अगर पुलिस ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया है आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से, इफ ही रिफ्यूजेस, देन व्हाट? तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा और टर्मिनेट भी किया जा सकता है, लीडिंग टू टर्मिनेशन. दिस वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. So I hope you are clear till now. Let's move ahead. If we talk about types of FIR, we have zero FIR, we have ante-time FIR, क्रॉस FIR, जो मल्टीपल FIR भी बन जाती है, एंड मल्टीपल FIR. See, cross FIR, if you want to know about these types of FIR in detail, then we will be sharing a link with you. You go to that particular link and watch that lecture, और आपको ये सारी टाइप्स की FIR समझ आ जाएंगी. बट एज ऑफ नाउ, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, आई विल बी टेलिंग यू जस्ट explaining these types of FIR in just one line. So what is zero FIR? जब किसी ऐसे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में क्राइम होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल a person commits crime in Delhi, say for in Dwarka, and that person, किसी पर्सन ने कोई ऐसा क्राइम देखा और वो उसने रिकॉर्ड कर दिया किसी और पुलिस स्टेशन में, किसी और पुलिस स्टेशन के एरिया में उसने वो एफआईआर लॉन्च करवा दी, वो इन्फॉर्मेशन किसी और पुलिस स्टेशन में जाके दे दी. So that particular police station does not have jurisdiction over that area जहां पे क्राइम हुआ, जहां पे ऑफेंस हुआ. तो अब क्या होगा? वो पुलिस स्टेशन, दो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर होगा वो मना नहीं कर सकता कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसीलिए हम इस इंफॉर्मेशन को लॉन्च नहीं करेंगे. वो मना नहीं करेंगे, वो इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे और वो उस पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर देंगे जिस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन बनती है. और वहां, और हर एफआईआर का एक नंबर होता है, तो वो उस एफआईआर को नंबर नहीं देंगे, उसका नंबर उस वक्त तक जीरो रहेगा, तो उसको जीरो एफआईआर कहते हैं. लेकिन जब वो उस पुलिस स्टेशन में आ जाएगी जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, तो वहां पे आके उस एफआईआर को एक उसका अपना नंबर मिल जाएगा. सो दिस इज जीरो एफआईआर. नाउ cross FIR, multiple FIR, and this anti-time FIR, you can watch it in that video. Due to shortage of time, I cannot cover these topics right now, since you all have joined so late. So let's move ahead. There is another landmark judgment which you might have studied about. This is Lalita Kumari versus State of UP. So इस जजमेंट में यही कहा गया था कि कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता.
Now, this copy of FIR, as I've already talked about, that accused को informant को दी जाएगी, कोर्ट में भी दी जाएगी. Copy of FIR कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जाएगी कॉपी? accused को, informant को and कोर्ट को. अगर accused को ये रिपोर्ट प्रोवाइड करने में डिले किया तो it creates a doubt. And informant को अगर copy of information प्रोवाइड नहीं की गई, then it vitiates the proceedings. Now let's talk about evidentiary value of FIR. It is not substantive and can be used to corroborate or contradict. Corroboration के काम आ सकती है, contradiction करने के काम आ सकती है, but it is not a substantive piece of evidence. So अगर FIR लॉन्च करने में कोई डिले किया, if delay in lodging FIR, then what? Then अगर उस डिले को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये डिले सो एंड सो रीजन की वजह से हुआ एंड कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि हाँ आपका रीजन फॉर डिले इज सेटिस्फाइंग, देन नो स्पेसिफिक इफेक्ट over the proceedings or over the evidence or the statement or the FIR. But अगर ये reason explain नहीं किया गया, there is no justifiable reason as to the delay caused in lodging FIR, then what? Then it creates a doubt. So there was another type of FIR. Let me mention it here only. This is cryptic FIR. अब ये क्रिप्टिक FIR क्या होती है, ये भी आपको उसी वीडियो में देखने को मिलेगा. सो गाइस, FIR से रिलेटेड बस इतना ही अभी की क्लास में. These questions I'll be solving, but अभी आपको ये questions जो है YouTube पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो आप उसके कमेंट सेक्शन में ये अपने डाउट्स में डालिएगा एंड द सेम विल बी आंसर्ड देन एंड देयर ओनली. या फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे. बट एज ऑफ नाउ, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, देयर इज नो स्पेसिफिक पीरियड मेंशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. नो स्पेसिफिक टाइम हैज बीन मेंशन कि आपको एक दिन में ही FIR रजिस्टर करनी है या 2 महीने में करनी है या 1 साल में करनी है, लेकिन ऐसा कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया है. उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको अभी बताया कि अगर देर इज अ डिले एंड द डिले इज एक्सप्लेन्ड और जज को लगता है कि यस दिस रीजन इज सेटिस्फाइंग, तो वो FIR को लॉन्च करने में मतलब कोई इसमें डाउट क्रिएट नहीं करेंगे. बट अगर आप कोई ऐसा रीजन दे रहे हैं कि मैं भूल गया या फिर मैं बाहर चला गया या मैं घूमने निकल गया, सो ऑब्वियसली वो रीजन काम नहीं करेंगे और वो डाउट क्रिएट करेंगे कि आपने इतना लेट इन्फॉर्मेशन क्यों दी. मैम बस 2 छोटे से क्वेश्चंस हैं मैम. मैम पहला है कि मैम क्रॉस FIR में कोई टाइम लिमिट होती है क्या? मैंने आपको भी यही बोला कि क्रॉस टाइम FIR, एंटी टाइम FIR, ये सारी FIR जो है आपको पहले समझनी है. समझने के लिए आपको वीडियो देखना होगा एंड आपके क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट क्लास. कल आप अपने क्वेश्चंस लेके आइएगा. हम थोड़ा जल्दी सेशन ज्वाइन कर लेंगे. आप सब इतना लेट ज्वाइन किए 1:10 पे. सो टुमारो यू ज्वाइन ऑन टाइम. 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वी विल हैव अ डाउट सेशन देन इन देयर ओनली. ओके मैम, थैंक यू सो मच. और आपको असाइनमेंट आपका मिल गया होगा, उस असाइनमेंट को सॉल्व करिएगा. कल आप अपनी असाइनमेंट मुझे सबमिट कीजिएगा एंड वी विल हैव अ परफॉर्मर ऑफ द वीक. आपकी जो असाइनमेंट्स होंगी द सेम विल बी, उनको चेक करके उन पे बकायदा मार्क्स दिए जाएंगे एंड वो मार्क्स टैली करके टोटल करके जो परफॉर्मर ऑफ द वीक होगा
we will be giving some kind of chota sa koi gift or present. So be prepared for that, and you are in the competition. So that's all for today. You will have a break of 5 minutes now, Okay. and we will join back for the session of IPC. Another link will be shared on your group, so wait for that link. You can Okay, ma'am. leave this meeting. Ma'am, attendance. Attendance, Mehul, you there? You can type your attendance in the comment box only. दो वी हैव मार्क्ड योर प्रेजेंट अभी भी, लेकिन फिर भी आप जब अपनी वीडियोस, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, तो आपको ये दोबारा सुनना है, एंड सुनने के बाद आपकी जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आप वैसे भी सुने बिना नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप वहां पे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी साथ साथ उसमें कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, एंड वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस टुमारो 5 मिनट्स प्रायर टू द सेशन। 1 बजे हमारी क्लास शुरू होती है, तो हम 12:50 या 55 पे हम क्लास शुरू कर लेंगे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑल योर डाउट्स। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, आपके डाउट्स जरूर क्लियर किए जाएंगे। You can leave this session now, and we will join back at 1:35. Be on time, else you will be at loss. Thank you, ma'am.